Hello student, today we discuss the chapter number 6 of part 2, India, People and Economy. Water resource, Jal Sansadhan. Firstly, we discuss why the water is so useful for us. After air, we know after air, water is necessary for us according to the requirement of human bodies. So that water bodies, different types of resources of water are so necessary for us. आज हम भारत के लोग और अर्थव्यवस्था उसमें हम चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दिस लेसन पहले ही बताया जल संसाधन क्या है, उसकी क्या जरूरतें हैं, हमें जल संसाधन की जरूरत क्यों है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है. वी स्टार्ट अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स एंड वी विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया. वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, भारत में जल के संसाधन या भारत में जलीय संसाधन. व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया? There are three sources of water in India. You know, first, surface water. Water obtained by the human being from the surface in the form of canal, in the form of rainfall, in the form of river. यानी कि by the help of river, by the help of canals, by the help of rainfall, we obtain the water from the surface. That is known as the surface water. Next, groundwater. Water obtaining by the human being from the inner part of the earth. That is known as the groundwater. And we obtain this water by the help of hand pump, by the help of tube wells, by the help of wells. That is known as the groundwater. And the third is lagoons. Lagoons are the lakes which are found in the coastal area of the sea, and these are formed due to the erosion work of the sea caves, work of the sea activities. Or this water which are obtaining from the lagoons for the purpose of the formation of salt, for the purpose of the irrigation, that is known as the lagoon waters. भारत में जल संसाधनों के तीन स्रोत हैं. पहला धरातलीय जल, दूसरा भौमिक जल और तीसरा है लेगून्स. पहला जो धरातलीय जल है उसे हम नदियों से, नहरों से और वर्षा के पानी के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे धरातलीय जल कहते हैं. सेकंड ग्राउंड वाटर है आंतरिक जल, जिसे सभी लोग भूमि के आंतरिक भाग से कुओं के द्वारा, नलकूप के द्वारा या हैंडपंप के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, उसे आंतरिक जल कहते हैं. थर्ड नंबर पे जो लैगून है, लैगून एक प्रकार की वो झील होती है जो समुद्र के तटीय भागों में पाई जाती हैं और जिनका निर्माण समुद्र जब की लहरें जब अपरदन कार्य करती हैं तो तटीय भाग को काट देती हैं और उन तटीय भागों में जो जल भर जाता है, जो खारा जल होता है,
उसे लैगून वाटर या पस्ट जल के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग सिंचाई के लिए, फिशरीज मत्स्य पालन के लिए व अन्य कई प्रकार के कृषि क्रियाकलापों में जो वो करते हैं। तो देयर आर द 3 सोर्सेज ऑफ वाटर। यहां पर हमारे 3 सोर्स जो है ये बताए। दैट्स कंप्लीट द फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट, वाटर डिमांड। On the behalf of demand, we can say due to the increase in the quantity of population, demand of water is increased day by day, and this demand is increased in different types of field. We know water is necessary for us after the air. If you think about of purpose and demand, you can say water is so useful for irrigation. In irrigation, different types of farmers require the maximum quantity of water for their crop. Second, urbanization. We also require for the water for in urban area for the complete of the requirement of household. In industries, demand is also increased day by day in the industrial area. Accordingly, in a form of raw material, in a form of energy resources. And we can say that is also so useful for the purpose of some types of activity of household. देखिए हाउसहोल्ड डिमांड इज आल्सो इंक्रीज। यहां पर अगर हम जल की मांग की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे जल की मांग में निरंतर विकास हो रहा है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट से देखें सिंचाई, अब कृषि का विस्तार दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो सिंचाई के लिए अधिक से अधिक जल की मात्रा का होना जरूरी है। अगर सिंचाई की सुविधाएं नहीं होगी तो सभी लोग फसल उत्पादन नहीं कर पाते, इसलिए सिंचाई के लिए इसकी मांग दिन पर दिन बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण में भी जल की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बिल्डिंग निर्माण के लिए हो या दूसरी जरूरतों के लिए हो, बाग बगीचों के लिए हो या फिर अन्य कार्यों के लिए हो, नगरों में भी जल की मांग निरंतर बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल की मांग निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि उद्योगों में कच्चे माल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऊर्जा के साधन के रूप में भी जल का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। हाउस होल्ड, यू नो बेटरली, इन द हाउसेस, घरों में अनेक लोग अलग अलग क्रियाकलापों में सुबह से लेकर के शाम तक हम पानी का प्रयोग करते हैं। अर्थात वायु के बाद जल ही ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो दैट इज द डिमांड ऑफ वाटर। ये जल की मांग है जो निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कॉमन सी बात है, जल की मांग जो है कंटिन्यूअसली अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर पोल्यूशन। What is the meaning of water pollution? Involve the different types of unwanted elements in the water bodies, and these are harmful for the quality of water. That is known as the water pollution. Means some elements are involved in water bodies, in canals, in rivers, in wells, in groundwater, and these are cause of the decrease the quality of this water, and this water is so harmful for us. This process is known as the water pollution. If you think about the cause, there are different types of causes responsible for it. You know, basically different industries throw the wastage in the water bodies,
and these wastes are responsible for the water pollution. Farmer are also throw the different types of wastes from the agriculture in the water bodies. That is also cause of the water pollution. Urban people also throw the different types of elements by the help of sewage in the water bodies. These are also cause of the water pollution. Different types of cultural activities also responsible for the water pollution. Increase in air pollution is cause of acid rain. That is also cause of the air pollution. How can we control this problem of water pollution? We control easily. According to control methods, we can say ban on the industrial waste. They proper use of their wastage, and ban on the wastage which are thrown by the farmer from the agriculture. Ban on the wastage which is thrown by the people from the urban area. Ban on the flow different types of material according to cultural activity by the people in any types of fair. These are the measures to control of water pollution. Third is water conservation. What is the meaning of water conservation? Water conservation save the water for future generation by the help of different types of method. That is known as the water conservation. Means some step adopted by the different people to save the purity, to save the quality, to save the quantity of water for the future generation. That is known as the water conservation. हमने 3 टॉपिक यहां पर डिस्कस किए. जल प्रदूषण क्या है? जल में अनावश्यक तत्वों का मिलना, ऐसी चीजों का मिलना जो जल को खराब कर देते हैं, जो हमारे लिए फिर वो हार्मफुल होता है. इस प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं. अब इस जल प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं अलग अलग. उद्योग हैं, उद्योग अपने वेस्टेज को, अपशिष्टों को जल वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, नदियों में, नहरों में, अन्य वाटर बॉडीज में, तो जल प्रदूषण होता है. किसान अपनी खेती बाड़ी का जो अपशिष्ट है वो डाल देते हैं वाटर बॉडीज में, तो जल प्रदूषण हो जाता है. नगरों से अपशिष्ट सीधे सीवेज के माध्यम से नहरों में डाल दिए जाते हैं, तो जल प्रदूषण हो जाता है. इसके अलावा अनेक गतिविधियां, खनन कार्य है, उससे भी वाटर बॉडीज जो है पोल्यूट होती हैं. इसके अलावा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मेले लगते हैं, नदियों में फूल प्रवाहित करते हैं, अगरबत्ती प्रवाहित करते हैं, प्रसाद प्रवाहित करते हैं, उससे भी जल प्रदूषण होता है. अब इन सभी चीजों को कंट्रोल करके ही हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं. कैसे? जो उद्योग वेस्टेज को प्रवाहित कर रहे हैं उस पर रोक लगा करके, जो किसान अपशिष्टों को बहाते हैं उस पर रोक लगा करके, नगरियों के अपशिष्टों का उचित निपटान करके भी हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं. मेलों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में जल में प्रवाहित होने वाली चीजों पर रोक लगा करके भी हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं. जल संरक्षण क्या है? भविष्य के लिए जल को बचाए रखना, अलग अलग कदम उठा करके भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए जल को बचाए रखना जल प्रदूषण कहलाता है. अब जल संरक्षण कहलाता है सभी, यानी कि जल के लिए अलग अलग कदम उठा करके उसको भविष्य के लिए बचाए रखना जल संरक्षण कहलाता है. सॉरी फॉर दिस, मैंने जल प्रदूषण कह दिया था. जल संरक्षण, कंजर्वेशन, जिसमें हम जल का पुनर्चक्रण करके इसका संरक्षण कर सकते हैं. वर्षा जल संग्रहण विधि अपना करके तो इसका संरक्षण कर सकते हैं. अनेक वाटर बॉडीज का पुनरुद्धार करके जल संरक्षण कर सकते हैं. नदियों, नलकूपों, कुओं का उद्धार करके जल संरक्षण कर सकते हैं. इस तरह से हम जल संरक्षण में भागीदार हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अरवारी पानी संसद?
Arwari Pani Sansad is a program which is adopted by the government in the Alwar district of Rajasthan to save the water for the future generation. They try to maintain the quality of water. They try to maintain the quality of water. They try to develop the different types of wells. They try to adopt the policies of rainwater harvesting. That is known as the Arwari Pani Sansad. Rainwater harvesting. According to rainwater harvesting, you know betterly, rainwater is collected by the people on their tanks, and after that, that is collected in a tank which is formed in the ground of the house. That is known as the rainwater harvesting, and that is also useful for the purpose of irrigation, for the purpose of the requirement of household also. That is known as the rainwater harvesting. Neeru Meru program. Neeru Meru program is also adopted by the people in the state of Andhra Pradesh for the purpose of save the water for the future generation. And they also take the step to develop the wells, to develop the hand pumps, to develop the canals, to maintain the purity and quality of the water. That is known as the Neeru Meru program. अरवारी पानी संसद क्या बताया? अलवर जिले में राजस्थान के लोगों द्वारा अपनाया। इसमें क्या किया गया? कुओं का उद्धार किया गया, नलकूपों का उद्धार किया गया, वर्षा जल संग्रहण विधि को अपनाया गया, सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धि करवाने हेतु अलग अलग तालाबों का भी निर्माण किया गया। इसे अरवारी पानी संसद के नाम से जाना जाता है। आगे वर्षा जल संग्रहण विधि ऐसी विधि होती है इसमें छतों पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, वर्षा के जल को, फिर पाइप के माध्यम से उसको स्टोर किया जाता है टैंक में, और फिर टैंक में स्टोर किया गया वाटर सिंचाई के लिए वह घर की जरूरतों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसे वर्षा जल छत संग्रहण विधि कहते हैं। नेहरू मेरू प्रोग्राम बताया जैसे कि आंध्र प्रदेश में जैसे अरवारी है वैसे ही नेहरू मेरू को अपनाया गया था। वहां के लोगों ने भी कुओं का उद्धार किया, नलकूपों का उद्धार किया, तालाबों का निर्माण किया, वर्षा जल संग्रहण विधि को अपनाया, उसे नेहरू मेरू प्रोग्राम का नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब द मेजर फीचर्स ऑफ NWP. NWP means National Water Policy 2002. According to this policy, government tried to manage the purity of water. Government tried to maintain the sustainability in water bodies. Government tried to complete the requirement of all people. Complete the requirement of all animals and also human beings is duty of government. Develop the different types of canals. Form the different types of dams on the river. That is known as the National Water Policy 2002. राष्ट्रीय जल नीति 2002 की क्या विशेषताएं हैं? सरकार द्वारा अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिसमें बताया गया, पहला, कुओं का उद्धार किया गया, नदियों का निर्माण किया गया, नलकूपों का उद्धार किया गया, वर्षा जल संग्रहण विधि को बढ़ावा दिया गया, पानी की गुणवत्ता, पानी की मात्रा दोनों को मेंटेन किया गया, लोगों की पानी की जरूरतें और जीव जंतु के पानी की जरूरतें सरकार का मुख्य कर्तव्य माना गया, अनेक नहरों को पक्का किया गया। ये जल नीति की प्रमुख विशेषताएं, और दैट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द 5 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। प्लीज टेक केयर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, व्हाट इज जल क्रांति अभियान 2015 and 16? According to this abhiyan, government also again try to maintain the quality of water, maintain the quantity of water, and major purpose
access to the water resources is types of people. Supply is developed in the rural area. Supply is developed in the urban area also. And control on the quality of water. Equal distribution among the people by the government. This facility provide to people. That is the more duty of the government. That is known as the जल क्रांति अभियान. जल क्रांति अभियान में सरकार ने क्या कदम उठाए? जल का उचित बंटवारा किया गया, सभी लोगों की पहुंच तक जल को उपलब्ध करवाया गया. जलीय संसाधनों का विस्तार करने के लिए जलीय पाइपलाइनों का विस्तार किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगरीय क्षेत्रों में भी. इसे जल क्रांति अभियान 2015-16 के नाम से जाना जाता है. हमने सभी पॉइंट्स को किया जो कि हमने पार्ट 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें हमने चैप्टर 6 जल संसाधन को डिस्कस किया और लगभग सभी पॉइंट्स को हमने डिटेल में जरूर डिस्कस किया है. एंड टुडे आई आल्सो अगेन फॉर माय बेस्ट. इफ यू लाइक माय लेक्चर, माय क्लास, then please you can like and share my video and subscribe my channel. And please stay home and be happy and believe in the hard working, because hard work is the key of success. So that please focus on hard work. You may success in your life. Thanks to all.